ग्रेविटेशन, राइट, हमारा आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका कुछ पर्टिकुलर मास होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कोई पर्टिकुलर मास है, वो दूसरे एक ऑब्जेक्ट जिसका भी कोई पर्टिकुलर मास होगा उसको अपनी तरफ खींचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर मान लेता हूँ कि ये एक बॉल है, इस बॉल का मास है m1। मैं मान लेता हूँ इस बॉल का मास है m1, इस बॉल का मास है m2। ये बॉल m1 खिंचा रहा है बॉल m2 की तरफ, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि ये बॉल B है, ये बॉल A है। तो बॉल A को खींच रहा है बॉल B, और बॉल B को भी खींच रहा है बॉल A। यही दुनिया का एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिखते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को किसी न किसी सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट करती है, तो दिस फोर्स इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा नहीं है कि अर्थ अगर कोई ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है तो वही सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसा नहीं होता। इस यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, राइट। सो दिस अट्रैक्टिव फोर्स is known as gravitational force of attraction, is known as gravitational force of attraction. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो भी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी हमारे पास हैं, इनको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें, उनका नाम है न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। इन्होंने हमारे सामने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट रखा कि ऐसा कोई फोर्स होता है जो इस यूनिवर्स के हर एक पिंड को, हर एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और इसे एक और नाम से जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। इसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। अब क्या होता है कि मान लेते हैं मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल के लिए दो बॉल्स हैं मेरे पास दो बॉल्स हैं, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। Two balls are there. First one is known as ball A, and the second one is ball B. First one have mass m1, the second one is mass m2. So here we will discuss about universal law of gravitation. What is gravitation? It is very clear to you. And now we will study about what is universal law of gravitation. Universal law of gravitation. Universal law of gravitation क्या होता है? देखो, according to universal law of gravitation, the attractive force between these two balls, between these two bodies, is directly proportional
to the product of their masses. Product of their masses. According to universal law of gravitation, the attractive force between two different bodies A and B is directly proportional to the masses of that bodies. This is the first universal law of gravitation. Second one is the attractive force between these two bodies is inversely proportional to the distance between these two bodies. Not actually the distance, the square of the distance of two bodies, between two bodies. So there is two law of gravitation that is known as universal law of gravitation. Why we call this law as a universal law of gravitation? Because this law is applicable in the whole universe. That is, in the whole universe it is same. This law is applicable in the whole universe. So this law is known as universal law of gravitation, right? According to universal law of gravitation, the attractive force between two bodies is directly proportional to their masses, product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between these two bodies. That means we have these two equations in our hand. So next topic, let us start. With the help of that two equation, we can write F is proportional to the product of their masses divided by square of the distance between them. We can write it as, right? Now we know that, हमें पता है कि if we have a proportionality sign, then we must use a constant to remove that proportionality sign. So here we will use a constant that is known as G. G is the constant. D is the proportionality constant. Proportionality constant means ये constant को लगा करके हम इस proportional को हम equal में convert कर रहे हैं. तो G into m1 into m2 by r square. So this is the equation for universal law of gravitation. Through this equation we can calculate the amount of force between two bodies of having two different masses and a distance between them, right? So here the G is a constant. G is the constant known as proportionality constant or universal gravitational constant. Right? So this is our topic. Here we are discussing about gravitation. What is gravitation? It is completed. Who introduced this? It is also completed. What is universal law of gravitation? We discussed about this matter. It is also been completed. And we have right now in our hand a equation. By this equation we can calculate the amount of force between two different bodies. And the G is a constant which is used to replace this constant with equals. That is known as proportionality constant or universal gravitational constant. The value of G is constant in everywhere. Value of G is constant in everywhere because it is a constant. It is independent of particles. It is independent of particles, temperature, medium,
etc। जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये इंडिपेंडेंट होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के मीडियम के ऊपर। ये डिपेंड नहीं करता, ये उससे इंडिपेंडेंट रहता है, राइट। इसका वैल्यू हर जगह पर कांस्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ जी। यूनिट ऑफ जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है। चलो फटाफट हम लोग को एक बात पता है सबसे इंपॉर्टेंट कि F इक्वल टू होता है G इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोग काम कर सकते हैं कि ये जो आर स्क्वायर है मैं उसे भेज सकता हूँ उस साइड, तो इससे क्या हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा G इंटू M1 इंटू M2। तो इधर जो G हम लिखेंगे तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बाय M1 इंटू M2। तो यहाँ से जो हमको इक्वेशन मिल रहा है इससे हम लोग कौन सा इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, ये हम लोग को दे रहा है G का एक फार्मूला। अब इस G के फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, G का ऐसा यूनिट निकालेंगे। तो देख लो फटाफट, G इक्वल टू हो गया हम लोग का F का ऐसा यूनिट क्या होता है, F मतलब हो गया फोर्स, उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। आर स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस का होता है मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय M1 इज द मास kg, फिर kg, M2 इज ऑल्सो ए मास kg। तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय kg इंटू kg स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिख सकते हैं कि G इक्वल टू हो गया हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, या इसे हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये kg के ऊपर में -2। इस डिवाइड को हटा करके हम लोग इसके ऊपर क्या कर दिए, -2 लगा दिए। तो ये भी हम लोगों का G का जो है कांस्टेंट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इसको समझिए, इसको अच्छे से एनालाइज करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।